Shanti. Om Shanti ma'am. Om Shanti. How are you all? Om Shanti ma'am. Om Shanti. आप सभी कैसे हो? Om Shanti. Om Shanti. How are you all? Are you all good? Fine? Yes ma'am. Yes ma'am. Safe and healthy? Yes ma'am. Fine. Fine ma'am. We ma'am safe and healthy. Very good. Very good. Ma'am. ये तो बहुत अच्छा है. सबको healthy रहना है, right? Fine, ma'am. Yes. So are you all ready to go ahead? Yes ma'am. Yes ma'am. Ma'am. Okay. I am ready. Yes, ma'am. Very good. Very good. So now what we are going to do today is first we'll revise a bit what we did yesterday, and today we are going to do a very wonderful chapter. Good Okay, morning, but- ma'am. Good evening. How are you? Good afternoon. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Om Shanti. Okay. So what did we do today? Do yesterday? ओम शांति दीदी. Om Shanti. अब सभी बताएंगे वन पॉइंट जिसको भी याद है. कल हमने क्या क्या किया था? मैम Benefits of medicine. मेडिटेशन. मैम हमने मैम सीखा कि मैम अगर मेडिटेशन ना करे और मैम स्ट्रेस रहे, मैम स्ट्रेस का मीनिंग, और मैम हमने मैम और भी न्यू चीजें सीखी. तो वन बाय वन बताएंगे ना. और क्या स्ट्रेस क्या होता है? यस अभियाना. Pressure. Stress is pressure. Pressure. और We learned. दीदी कल मैंने मेडिटेशन करी थी. वेरी गुड. यस Benefits अभियाना. of meditation. We learned what is meditation and how Why meditation? Why do we meditate? Very good. Okay, benefits of meditation. So what are the benefits that we learned yesterday? Some will of stay- you the benefits. Ma'am, we will ma'am energetic and healthy. Energetic and To healthy. be calm. Get power Calm. of that. What else? हम शांत रहते हैं. हम शांत रहते हैं. We peaceful. What मैम else? कंसंट्रेशन बनता है. Concentration. It To be it peaceful. enhances our concentration. क्या? Peaceful. और Happy. happy. और क्या बोल रहे हो? No, ma'am. Stress free रहते हैं. टेंशन फ्री रहते हैं. स्ट्रेस फ्री रहते हैं. वेरी गुड. ओके. Very good. So did you all try the meditation we did in class yesterday? Did you all try the meditation we did yesterday? No. No. Yes. Really? अच्छा, कोई बात नहीं. तो अब अगर आप डेली जिसने नहीं भी ट्राई किया और जिसने किया वेरी गुड, जिसने नहीं भी ट्राई किया कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज से अभी से एक रूल बना लो. Whenever we drink water, we will meditate for half a minute, 30 seconds only. इतना तो कर सकते हैं ना हम? Is this too difficult? No, ma'am, it is too easy. We It is can too do it. easy, right? And how we'll meditate? We'll take deep breaths. We'll calm ourselves. We'll say, "I am a peaceful being. I'm a peaceful being" 5 times, and then we'll drink water. This is the only thing that we have to do from today. Okay? सिर्फ हमें यही करना है. देखो सारे बच्चे. Easy? It's easy, right? Okay. So now today we are going to do something very nice. Okay, now I have a question. Anyone can answer, but you have to raise your digital hand. सब एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा? किसी की बात सुनाई देगी? किसी की भी बात नहीं सुनाई देगी. ठीक है? So are you ready for my quiz? Shall I ask you a Yes. question? Yes, ma'am. Okay. For Yes, example, ma'am. This is my laptop. I am operating via my laptop. Whose laptop are you using? Whose laptop is this with which you are operating? You are attending the meeting.
Ma'am, my father's. My father's. Okay. My laptop. What? My laptop. My laptop. Who else? Who says my laptop? Okay. Samar. My laptop. My laptop. Vedika. My mother's laptop. My mother's laptop. Sure. My mother's laptop, my father's laptop, my sister, my brother और my laptop. Right? किसी का कोई different answer तो नहीं है? Sure हो ना? सभी याद रखना अपने अपने sentence को. ठीक है? सबने बोला this is my laptop. Okay, ma'am. Okay? Okay. Now my next question is, suppose घर में पार्टी है. ओके कोविड खत्म हो चुका, सब घर पे अब गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी है, and you helped a lot with your mama. You didn't get time to even take a break or to drink milk in between, and your whole body is aching. आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है. मम्मा को कैसे बताओगे? मम्मा कैसे बताओगे मम्मा को? पूरी बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो हाउ विल यू टेल इट टू मम्मा? Dad, now. अरे कैसे बताएंगे? अगर मेरे सिर में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है तो मैं क्या बोलूं? रोकर. दर्द हो रहा है. हमें ब्रेक. मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है ना? यही तो बोलोगे कि मम्मा मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मैं बॉडी इज aching. सब यही बोलेंगे ना? सब यही बोलेंगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मुझको आप हिंदी में बात कीजिए ना. ओके ओके. अगर आपकी बॉडी में दर्द, अगर आपके शरीर में दर्द होगा तो आप मम्मी को कैसे बताओगे? क्या कहोगे मम्मी से? मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है. मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है. राइट? मेरे शरीर में. हाँ. अब ध्यान देना, आपने जब मैंने आपसे लैपटॉप के बारे में पूछा था कि आप किसके लैपटॉप से हो, आपने कहा मेरा लैपटॉप, मेरे पापा, मेरी मम्मी. शरीर तो लैपटॉप एक चीज है. लैपटॉप इज अ थिंग. वो चीज आपकी है, आप लैपटॉप नहीं हो. ये तो किसी ने नहीं कहा आई एम अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप हूँ. ये तो किसी ने नहीं बोला ना. जब मैंने पूछा है लैपटॉप किसका है तो किसी ने आंसर दिया मैं लैपटॉप हूँ. सबने क्या बोला? ये लैपटॉप मेरा है. तो लैपटॉप एक चीज है जो मेरी है. राइट? उस पर मेरा अधिकार है. अब सिमिलरली बॉडी, जब मैंने आपसे पूछा कि अगर शरीर में दर्द होगा तो आप क्या बोलोगे? आपने कहा मेरे शरीर में दर्द है. तो मेरा वर्ड आपने लैपटॉप के लिए भी यूज किया, मेरा वर्ड आपने शरीर के लिए भी यूज किया. तो इसका मतलब क्या हुआ? कि शरीर एक वो चीज है जो मेरी है, बट मैं शरीर नहीं हूँ. है ना? जैसे मैं लैपटॉप नहीं हूँ, इसी तरह मैं शरीर भी नहीं हूँ. कभी ऐसे बोलते मैं सिर दर्द हूँ, मैं पेट दर्द हूँ, No, ma'am. मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, ऐसे ही बोलते हैं ना. वी ऑलवेज यूज द वर्ड माई. हम हमेशा मेरा शब्द यूज करते हैं, है ना? मेरा हार्ट, मेरा दिल, मेरी किडनी, ऐसे ही बोलते हैं ना. तो फिर हम दिन भर इस वर्ड को यूज करते हैं. आई एम लिसनिंग, मैं सुन रही हूँ. आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ. तो ये मैं वर्ड क्या है कौन ये मैं? जब ये मैम हम कैसे हो सकते हैं? कौन है हम? कुछ हमारा. मैम हमारा क्या है? मैं कौन है ये मेरे को बता दो. अब मैं बोल रही हूँ, आई एम सेइंग, मैं बोल रही हूँ. आई एम सेइंग. तो हु एम आई? मैं कौन हूँ? अम्मा आत्मा. आत्मा. पक्का? कंफर्म्ड है? श्योर हो? सोच के बताओ. I am a soul. आई एम अ सोल. I am a peaceful soul. आई एम अ पीसफुल सोल. ओके. यस श्रेया. किशाना. Peaceful human. आई एम अ ह्यूमन. आत्मा. आत्मा. मैं कौन है? आत्मा. Soul. देखो,
जो मैं, अगर एक कार है, सपोज ये जो शरीर है ये मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। अब मेरा नाम रिमिया है, मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, उसका नाम श्रेया है, उसका नाम किशाना है, तो बॉडी के नेम्स हुए ना, बॉडी से ही पहचानते हो ना आप, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, बॉडी से ही बोलते हो ना, या कोई कैसे बोलते हो बताओ, बॉडी से ही बोलते हो ना बॉडी सभी। से। यस मैम। तो ये मेरी मैं आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है। आप कुशल हो, वेरी गुड। ये मेरी एक आइडेंटिटी है, बट मैं एक्चुअली में ये नहीं हूँ। देखो जैसे हम ड्रेस पहनते हैं ना, ये बॉडी इज लाइक अ ड्रेस, ये शरीर भी एक ड्रेस की तरह है। समझ आ रहा है सभी को? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हमारी बॉडी हमारे सोल का ड्रेस है। एग्जैक्टली, बिकॉज सोल। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपकी आइडेंटिटी हो गई, राइट? दिस इज योर आइडेंटिटी। किसी को कोई डाउट है? सब आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके शरीर से आप उनको पहचानते हो ना, उनकी बॉडी से आप उनको पहचानते हो ना। यू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड्स विद देयर बॉडी, राइट? यू रिकॉग्नाइज योर पेरेंट्स विद देयर बॉडी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, उनके शरीर से पहचानते हो। तो शरीर इज लाइक योर आइडेंटिटी, ये आपकी एक पहचान है। अच्छा, अब आइडेंटिटी में फर्स्ट क्या आता है? आपका नाम नाम है ना, शरीर का नाम, जैसे हमने बताया मेरा नाम रिमिया है, तो इस शरीर का नाम रिमिया। देन जेंडर, फीमेल और मेल, लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, राइट? गर्ल है या बॉय है, तो जेंडर। देन क्वालिफिकेशन, योग्यता, आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो, आप टीचर हो, आप कितने क्वालिफाइड हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, काम करते हो, अच्छा क्या काम करते हो आप, ऑफिसर रैंक पे हो या कम हो, आपकी क्वालिफिकेशन। एंड देन योर पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया ऑफिसर हो या टीचर हो, प्रिंसिपल हो, स्टाफ हो, स्कूल में बच्चे हो, क्या हो, दैट इज योर पोजीशन। हाउस वाइफ हो, मम्मा हो, पापा हो, दीदी हो, छोटी सिस्टर हो, भैया हो या छोटा भाई हो, ठीक है? ये सारी हमारी पोजीशन हो गई। नेशनैलिटी, हम इंडियन है, हम ऑस्ट्रेलियन है, हम लंदन से हैं, हम ब्रिटिश है, हम अमेरिकन है। So these are your nationalities, राष्ट्रीयता, this is your पहचान, this is your identity, right? और लास्ट आया रिलीजन, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, राइट? These are the religions. तो ये हमारी पहचान है, किसकी पहचान है? इस बॉडी की। ये सारी जो पहचान है इस बॉडी की है ना, आप बॉडी से ही पहचानते हो ना। ये मेरी टीचर है, शी इज माई टीचर, ये हिंदू है, शी इज मुस्लिम, ये तो बच्चा है, ये तो बड़ा है, ये गर्ल है, ये बॉय है। शरीर से ही पहचानते हो ना, बॉडी से ही पहचानते हो ना, राइट? यू रिकॉग्नाइज थिंग्स विद दीज थिंग्स विद दिस बॉडी। सो दिस बॉडी इज माय आइडेंटिटी, ये मुझ आत्मा की पहचान है, राइट? क्लियर हुआ? अब देखो, इज दिस ट्रू? अब हमने जो पूछा था, द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू बिफोर अबाउट दैट लैपटॉप, क्या ये आइडेंटिटी सच्ची है? इज दिस आइडेंटिटी ट्रू? क्या लगता है आपको? क्या ये सारी चीजें सच्ची हैं, रियलिटी है? इज दिस द रियलिटी? नो मैम। नो, पक्का? यस मैम। यस मैम। नो। यस अच्छा, मैम। who all हाँ, says no? मैम। अच्छा, who all says yes? Who all says yes? Just unmute yourself. जो बोलता है yes, ये सच्ची है, तो मैम yes. कुशल से। कुशल No. says, जो कहता है कि आइडेंटिटी सच्ची है, that this identity is true, just unmute yourself. Okay, Adiba, did I pronounce the name right? Yes, ma'am. Okay,
तो आप बताओ आइडेंटिटी सच्ची है ये? Yes, ma'am. Why? How can you say so? Ma'am, because अच्छा एक बात बताओ, more. किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है तो शरीर तो खत्म हो गया, शरीर के साथ आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है। जो सच होता है, अगर ये सच्ची है तो ये तो हमेशा रहनी चाहिए ना। शरीर खत्म हुआ, शरीर के साथ सारे रिलेशंस भी खत्म हो गए। जब किसी की डेड बॉडी सामने होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये डेड बॉडी है, हम उसे डेड बॉडी बोलते हैं, राइट? Yes, ma'am. हम उसे ये नहीं बोलते ये मम्मी है, ये पापा है, ये फ्रेंड है, ये भाई है, नहीं, हम उसे बोलते हैं डेड बॉडी। तो यानी कि उस बॉडी में कोई तो ऐसी चीज थी जिससे हमारा रिलेशन था। उसके बाद चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो तो बॉडी है। कोई भी ये नहीं कहता ये क्रिश्चियन है, कोई ये नहीं कहता ये हिंदू है, कोई ये नहीं कहता ये मुस्लिम है, उसको सब बोलते हैं डेड बॉडी है। कोई बॉस था, कोई प्रिंसिपल थी, कोई टीचर है, तो उसके लिए बोला जाता है थी। अब तो कोई सिर्फ एक डेड बॉडी है। एम आई क्लियर? चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके लिए ये नहीं बोला जाता लड़की है, लड़की थी, लड़का था, बट अब क्या है, ये एक डेड बॉडी है। तो ये आइडेंटिटी कैसे सच्ची हुई? जो भी अभी मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज बताई, वो सच्ची कैसे हुई? ये सब तो सिर्फ जब तक मैं इस बॉडी में हूँ, जब तक ये बॉडी है, तब तक ये आइडेंटिटीज है। जब बॉडी जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन, उस दिन तो ये सारी आइडेंटिटीज खत्म हो जाएंगी बॉडी के साथ ही। बताओ, सोच के बताओ, समझ आ रहा है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेदिका को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? ये कार है, और कार में ये कौन है? अरे ये People. आदमी. ड्राइवर, ड्राइवर। Admi. दिस इज अ कार, दिस इज ड्राइवर, ठीक है? अब सपोज कार क्रैश हो जाती है, ठीक है? लेकिन कार क्रैश हो सकती है, कार का ये हाल हो गया, ड्राइवर तो हेल्दी है, समझे? सपोज कार में ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर खड़ा करके कार कहीं चला गया, पीछे से कोई आया, किसी ने कार का एक्सीडेंट कर दिया, कार को ठोक दिया, तो चोट किसको लगेगी? ड्राइवर को लगेगी, कार को लगेगी? Car. कार। Ma'am, ma'am, both. Ma'am, both. Car को. ड्राइवर वॉज नॉट इन द कार, ड्राइवर तो कार में था ही नहीं, तो ड्राइवर को भी चोट लग जाएगी। No, ma'am. Car, ma'am. चोट किसको लगेगी? Car. कार को। और ड्राइवर कैसा रहेगा? ड्राइवर हेल्दी रहेगा, ड्राइवर विल रिमेन हेल्दी। Healthy. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, तो यही एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आइडेंटिटी, हमारी जो बॉडी है वो इस कार की तरह है। जिसको चलाने वाला कौन है उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है? तो जो कुछ होता है इस बॉडी के साथ होता है, ड्राइवर को कुछ नहीं होता। जो हमारा ड्राइवर है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमें कंट्रोल कर रहा है, उसको कुछ नहीं होता। ही इज ऑलवेज हेल्दी, ही नेवर फॉल्स इल। बट गाड़ी को होता है, जो कुछ होता है, चोट लगती है गाड़ी को लगती है, ड्राइवर ऑलवेज रिमेन हेल्दी। तो वो जो सारी आइडेंटिटीज होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि डेड बॉडी होती है, सारी आइडेंटिटीज उसके साथ खत्म हो जाती है। बट बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी चीज जिससे वो सारे रिलेशन थे जब वो इस बॉडी में थी, द मोमेंट वो निकल गई तो वो बॉडी क्या हो गई? डेड बॉडी। सारे रिलेशन क्या हो गए? फिनिश। सारी क्वालिफिकेशन खत्म, हर आइडेंटिटी खत्म हो गई। सबको समझ आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Ma'am. एनी प्रॉब्लम सो फार? No, ma'am. No, ma'am.
अब देखो, नाउ वी कम टू ट्रू आइडेंटिटी। अभी हमने बोला वो जो सारी आइडेंटिटीज थी, जेंडर, नेम, क्वालिफिकेशन, पोजीशन, वो सब झूठ था। तब सच क्या है? जाने सच क्या है? Yes, ma'am. Okay. This is body. हमारा हड्डी मांस का शरीर है ना, सबके बॉडी पे हड्डी है। कोई ऐसा तो नहीं है बिना हड्डी वाला बैठा हो यहाँ पे? कोई है क्या? नो मैम। ठीक है, नो प्लस नो मैम। बीइंग। देखो, बॉडी, शरीर प्लस बीइंग, जिसको हम बीइंग बोलते हैं। ह्यूमन के साथ हम वर्ड यूज करते हैं बीइंग। तो व्हाट इज बीइंग? द सोल, एनर्जी। एग्जैक्टली। और इसको मिलाकर क्या बनता है? बॉडी प्लस बीइंग इक्वल टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग, जीव यानी कि ये बॉडी प्लस आत्मा। जब तक आत्मा यानी कि ड्राइवर इस बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता, ये बॉडी कोई काम नहीं करती। बॉडी कब काम करती है? कार, अगर कार खड़ी है, कार को जब तक ड्राइवर चलाएगा नहीं, कार नहीं चलेगी, राइट? कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। इसी तरह इस बॉडी को चलाने के लिए ड्राइवर जो है वो क्या है? सोल। उसको क्या बोलते हैं? सोल। क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? किसी का कोई क्वेश्चन है? वेदिका समझ? यस मैम। ओके, नाउ एड्रेस। अब ये पूरी बॉडी के अंदर सोल रहती कहाँ है? इन द मिडल ऑफ द सिस्टम फोरहेड। के भी अंदर। ब्रेन के हाँ जी? अंदर। सिस्टम के अंदर। अच्छा, ब्रेन के कैसे अंदर। कह सकते हो? मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क के अंदर। शरीर। मस्तिष्क के अंदर भी कहाँ? भ्रुकुटी के बीच में। भ्रिकुटी क्या होती है? पढ़ तो सबने लिया। आईब्रोज के बीच। के बीच में और बोलते हैं GIDE, ग्लाइड। Those who want to write can write this word. Otherwise ये वर्ड तो हमेशा याद रखना, भ्रिकुटी। सोल कहाँ होती है? भ्रिकुटी में। अच्छा, भ्रिकुटी कहाँ होती है? मैम बॉडी के आंखों अंदर। के ऊपर। अच्छा, ऑन द आईज। मम्मी बिंदी कहाँ लगाती है? मिडल ऑफ द फोरहेड, राइट? बिल्कुल आईब्रोज के बीच में। जब तिलक, एग्जैक्टली, जब हम किसी को तिलक लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? आईब्रोज के मैम बीच सिर में। के मैम बीच में। मैम ऐसे मैम आईब्रोज के बीच में तिलक हमेशा, वो सिंदूर होता है जो आप बोल रहे हो। तिलक यहाँ पे लगता है ना हमेशा, आईब्रोज के बीच में लगाते हैं ना। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दैट दिस प्लेस ग्लाइड, दिस प्लेस मिडल ऑफ द फोरहेड, जो ये सेंटर का फोरहेड होता है, दिस इज कॉल्ड भ्रिकुटी। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सोल रहती है। इसकी पहचान क्या है? हम जब भी कभी तिलक कहीं पे भी देते हैं, नोज पे, चीक पे है, कहीं पे भी लगा देते हैं, लगाते हैं। बहुत ही ज्यादा कैसा माना जाता है? कैसा मानते थे? मैम रेयर। रेयर। बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस, राइट? एंड क्यों माना जाता है इसको इतना अच्छा? क्योंकि जब भी देखो कोई शुभ काम के लिए जाता है ना, तो उसको तिलक लगा, तिलक ऐसा इसलिए माना जाता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो यहाँ पर इस सोल को शक्ति दे सके। तो इसीलिए पंडित जी जो है, मंदिर में आप जाते हो, वहाँ पे जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है, उसके वहां से तिलक लेके हमेशा माथे पे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगाया जाता है। कभी भी आप कोई चीज कोई गिर जाती है, कोई कॉपी पेन उठाते हो तो कहाँ टच करते हो? यहाँ ऐसे टच करते हो, क्योंकि सोल का हाउस कहाँ है? सोल कहाँ रहती है? यहाँ मिडिल ऑफ द फोरहेड। क्लियर? यस। ये देखो,
Yes, जी. इस तरीके की होती है सोल, यहाँ बिल्कुल यहाँ मिडल ऑफ द फोरहेड. दिस प्लेस इज कॉल्ड ब्रिकुटी. क्या बोलते हैं इस प्लेस को? Brucotti. मैम दोबारा बोलो 5 टाइम्स, सब एक साथ रिपीट करो. मैम बिकोटी मैम ओके, Brucotti. ब्रिकुटी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी आत्मा गुड. Brucotti. ओके, Brucotti. तो अच्छा, Brucotti. ओके, परफेक्ट. ठीक है, ये वर्ड याद रखना. इस तरीके की होती है सोल. देखो, अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे, अगर सिंसियरली, तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे सोल. कभी आज तक देखी है किसी ने सोल? नहीं देखी ना. लेकिन आज हम सभी कोशिश करेंगे देखने की. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आत्मा क्या Yes, होती दीदी. है, आत्मा कहाँ रहती है, इतना क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अब सोल होती क्या है? सोल सब 5 सेंस ऑर्गन्स की कंट्रोलर होती है. पहले तो मुझे बताओ, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? मैम 5 सेंस Ears, eyes, mouth, nose, ears, tongue, nose, skin, ears, eyes, nose, tongue, tongue, mouth, ear, eyes, tongue, skin and tongue. Mouth. वेरी गुड, वेरी गुड. सबको आता है. ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना, इनको हम हिंदी में बोलते हैं कर्मेंद्रियां. यानी कि जिनके थ्रू हम कर्म करते हैं, काम करते हैं. वो इंद्रियां, वो ऑर्गन्स जिनके थ्रू काम होता है, कर्म होता है. ठीक है, तो इनको हिंदी में बोलते हैं कर्मेंद्रियां. तो ये जो सोल है, यही इस बॉडी को कंट्रोल करती है. तभी हम बोलते हैं आई एम स्पीकिंग. तो ये आई हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? मैं शब्द किसके लिए यूज करते हैं? इस सोल के लिए. क्योंकि करने वाला कौन है? सोल. जो करेगा उसी का नाम तो लिया जाएगा ना. जो करता है उसी का नाम लिया जाता है ना. अगर आपसे पूछे आपके घर में खाना कौन बनाता है, मम्मा बनाती है, तो आप मम्मा का ही नाम लोगे ना. ये थोड़ी कहोगे पड़ोसी आके बनाते हैं, पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, आंटी रहती है, वो बनाते हैं. जो काम करता है उसके लिए बोलते हैं. तो हमारी बॉडी में जो काम करता है, वो करने वाला मैं कौन है? सोल, आत्मा. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चन? Ma'am. किसी का कोई क्वेश्चन? no, ma'am. No, ma'am. तो ये देखो, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है? साइट देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल करना, टच करना और टेस्ट करना. अच्छा, अब डिफरेंस. सोल प्लस बॉडी. फिजिकल बॉडी कैसी होती है? दिखती है ना आपकी बॉडी. यस मैम. लेकिन सोल क्या है? सोल निराकार है. सोल को बॉडी, सोल हमें फिजिकली दिखती है. आंखों से अगर देखना चाहे उसका सोल दिखी है कभी? No, ma'am. कभी नहीं दिखी. और हम बॉडीज को देख सकते हैं. सोल जो है वो इमॉर्टल है, यानी कि अविनाशी है. सोल कभी खत्म नहीं होती. जिसको हम हिंदी में, आपने कॉमन वर्ड यूज सुना होगा, अमर. सोल अमर होती है. एक बॉडी से निकली, बॉडी फिनिश हुई, दूसरी बॉडी में एंटर हो जाएगी. सुना है ना? आत्मा. आत्मा कहाँ जाती है? एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी. और ये बॉडी कैसी होती है? मॉर्टल, यानी कि विनाशी. शरीर का विनाश हो सकता है ना, शरीर तो खत्म होता है ना सबका. या कोई ऐसा है जो कहता है नहीं नहीं मेरा शरीर तो खत्म नहीं होता, मैं तो कई सदियों से सारी जिंदगी चलता आ रहा हूँ. कोई ऐसा है जो बहुत सेंचुरीज से चलता आ रहा हो? नो मैम. हाँ, सोच लो. राइट. तो हमारी बॉडी कैसी है? मॉर्टल, यानी कि कभी भी फिनिश हो सकती है, खत्म हो सकती है. लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती. आत्मा इज अविनाशी, इमॉर्टल. अच्छा, नेक्स्ट है सोल है इटर्नल, बॉडी है टेम्पररी. सोल हमेशा रहती है, इट रिमेन्स फॉर एवर. लेकिन बॉडी क्या है? टेम्पररी है. आज है कल नहीं है, है ना.
बॉडी का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन सोल जब तक ये सृष्टि है, सोल ऐसे के ऐसे ही पार्ट प्ले करती रहती है, सोल चलती रहती है, सोल नेवर डाइज, सोल कभी खत्म नहीं होती। लास्ट, सोल कॉन्शियस, चैतन्य आत्मा, और बॉडी नॉन कॉन्शियस। ये वाला पॉइंट बाद में हम प्रैक्टिकली करेंगे। Didi, इस point where को did the soul comes? from where did the soul come into this world? बोलो Yes. शाश्वत। बताऊंगी बताऊंगी, धीरे 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 सब करेंगे। सारे क्वेश्चंस लिख के रखो, जो भी क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं वो लिखो, ठीक है, जस्ट राइट देम डाउन, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, तभी तो मजा आएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सोल की 3 फैकल्टीज है। सोल इज मेड अप ऑफ, सोल हैज 3 कंपोनेंट्स, सोल की 3 कंपोनेंट्स हैं, सोल के 3 चीजों से मिलके सोल बनी है, आप ये कह सकते हो। 3 फैकल्टीज जिनको हम बोलते हैं, 3 फैकल्टीज ऑफ सोल, सूक्ष्म इंद्रियां, यानी कि वो ऐसे ऑर्गन्स, सोल के 3 ऑर्गन्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। मन, बुद्धि और संस्कार। मन बोलते हैं ना, आज मन नहीं है खाने का, मेरा तो आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा खाने का, बोलते हो नहीं बोलते हो, आज तो ना ये मन है, आज तो मेरा वो मन है, मन वर्ड हम यूज करते हैं ना, तो इट्स अ कंपोनेंट, इट्स अ ऑर्गन ऑफ सोल, ठीक है। और फिर दूसरा आया इंटेलेक्ट, यानी कि बुद्धि। मन, बुद्धि और संस्कार, इम्प्रेशन। संस्कार क्या होते हैं? चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, इजी तरीके से तीनों चीजें समझ में होंगी। एक बार एक बच्चा था, उस बच्चे का बहुत मन था कि मैं आइसक्रीम खाऊं, लेकिन उसकी मम्मा ने कहा नहीं नहीं, दांत खराब हो जाएंगे, आइसक्रीम नहीं खानी है आपको। अब वो बच्चा घर से बाहर निकला गुस्से में कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, आप तो हमेशा मेरे को आइसक्रीम खाने के लिए मना करते रहते हो, मेरा इतना मन कर रहा है। उसने क्या देखा, जब वो अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा था पार्क में गुस्से में, उसने देखा रास्ते में किसी का पर्स पड़ा है, उसने वो पर्स उठाया, उससे खोला और उसमें ढेर सारे पैसे थे। अब सोचना, अभी बोलना नहीं, सिर्फ सोचना कि उस बच्चे ने क्या किया। उसके मन की बात पूरी हो सकती थी, आइसक्रीम, मम्मी ने बोला था आइसक्रीम नहीं खानी, पर मम्मी ने तो पैसे दिए नहीं, बट मुझे इतने सारे पैसे मिल गए। जस्ट थिंक कि आगे क्या हुआ। मैम वो बच्चा मैम पर्स उठा के मैम सीधा आइसक्रीम वाले के पास गया, उससे आइसक्रीम मांगा। ओके, बच्चा पर्स को लेके पुलिस डिपार्टमेंट में उसे रख के आ गया। अच्छा ओके, और बताओ, यूज योर ओन क्रिएटिविटी। वो मैम वो आइसक्रीम लेने गया। अच्छा, वो आइसक्रीम लेने गया, उसने क्या किया, पैसे निकाल लिए सारे, लूट लिया। अच्छा उसने पर्स ही लूट लिया, उसने अपने पास ही रख लिया। मैम वो मम्मी को बोला होगा कि उधर एक पर्स गिरा हुआ है। अच्छा, उसने अपनी मम्मा को चोरी बोला, नहीं और किया। उसने और पर्स उठा उसने के वापस पुलिस को दे दिया। वो पर्सन को लौटा दिया होगा पर्स। अच्छा, जिनका पर्स था उनको लौटा दिया होगा। अच्छा, दे दिया। कुछ बहुत वैसा चीज होगा जिससे उसे पता चल सके कि वो किसका है। परफेक्ट। तो सबने हमने अलग अलग आंसर्स दिए, ठीक है। अब इस स्टोरी के 2 सिचुएशंस हैं, अब मैं आपको दोनों सुनाती हूँ। जब उसने पर्स देखा और खोला, इतने सारे पैसे हैं, तो फर्स्ट थॉट दैट केम इन हिज माइंड, जो उसके मन में बात आई, थॉट आया, मम्मी ने मुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे नहीं दिए, बट इस पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं खूब सारी आइसक्रीम मन भर के जो है आइसक्रीम खा सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये थॉट कहाँ पे आया, उसके मन में आया, बट इमीडिएटली उसकी बुद्धि ने कहा लेकिन तुम्हारी मम्मा ने कहा है कभी भी किसी की चीज बिना पूछे नहीं उठाते, ये तो चोरी हो गई। मुझे लगता है, इंटेलेक्ट से, मुझे लगता है तुम्हें पर्स नहीं उठाना चाहिए, मम्मा ने एक तो दांत खराब हो जाएंगे इसलिए मना किया, और दूसरा चोरी करना गलत बात है,
और तीसरा यानी कि इम्प्रेशन, संस्कार, अपनी बुद्धि की बात सुनकर जो उसने काम किया, दैट बिकम्स हिज संस्कार, वो उसका संस्कार हो गया। अब सपोज उसने अपनी बुद्धि की बात मान ली कि नहीं, मुझे पर्स को नहीं उठाना चाहिए, तो जैसे कि आप लोगों ने सजेशंस दिए कि उसने वो पर्स पुलिस में रिटर्न कर दिया या जिनका था उनको दे दिया, ठीक है, एंड सो ऑन, और जो सॉल्यूशंस मिले थे, तो इससे क्या हुआ, उसके संस्कार कैसे हो गए? सब क्या कहेंगे, वाह इस बच्चे के तो संस्कार बहुत अच्छे हैं, इस बच्चे में तो बहुत अच्छे संस्कार है, इसके पेरेंट्स ने इसको बहुत अच्छी वैल्यूज सिखाई है। सुना है ये वर्ड? यूजुअली घर में ये चीज सुनते हैं, राइट? उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, करेक्ट। अब दूसरा सिचुएशन क्या था, उसने पर्स खोला, उठाया, देखा अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे, बुद्धि ने कहा हाँ तेरा मन भी कर रहा था ना खाने का, तू खा ले। और फिर उसने क्या किया, उसका इंप्रेशन क्या हुआ, संस्कार, उसने जाके पर्स को सीधा आइसक्रीम वाले के पास लेके वहां पे उसने आइसक्रीम खाई, तो दैट बिकेम हिज संस्कार। तो मन क्या है, मन में थॉट्स आते हैं, मन थॉट्स क्रिएट करता है, मन इज द क्रिएटर ऑफ थॉट्स। बुद्धि, हमारी इंटेलेक्ट क्या करती है, हमारी इंटेलेक्ट डिसीजन लेती है, वेदर इट्स राइट और इट्स रॉन्ग। आप जो ये काम कर रहे हो, क्या ये काम सही है या गलत है? निर्णय करना, डिसीजन, द पावर टू डिसाइड इज डन बाय आवर बुद्धि, इंटेलेक्ट। और उसके बाद जो हम काम करते हैं वो हमारे संस्कार हो जाते हैं। क्लियर हुआ? मन क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता है। थॉट्स क्रिएट करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि क्या करती वो है? थॉट सही है या गलत ये डिसाइड करती है। डिसाइड करती है। और लास्ट संस्कार क्या होते हैं? अच्छा काम करना, सिर्फ अच्छा, बुरा भी हो सकता है। इम्प्रेशन, करना, अच्छा काम करना। बुद्धि के डिसाइड करने के बाद जो हम काम करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। वट एवर एक्शन वी First परफॉर्म, impression. एक्शन वी बोलो। First impression is the last impression. हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसे भी बोलते हैं। तो जो हम काम करते हैं, द एक्शन दैट वी परफॉर्म बिकम्स आवर इम्प्रेशन। इस संस्कार को इंग्लिश में हम इम्प्रेशंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ आया? यस तो ये मैम। मन, Yes, बुद्धि, ma'am. संस्कार, ये क्या है? These are the three faculties of soul. ऑर्गन्स, सटल ऑर्गन्स, सूक्ष्म इंद्रियां। एक तो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो सबको दिखते हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा नहीं दिखती तो आत्मा के ऑर्गन्स दिखेंगे? आत्मा के ऑर्गन्स भी नहीं दिखेंगे, राइट? क्लियर हुआ? यस मैम। इज इट क्लियर? Ma'am. यस मैम। यस मैम, यस मैम। मन, यस मैम। क्रिएटर ऑफ थॉट्स। मन क्या करता है? सोचता है नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, अब दो टाइप के अभी थॉट्स हमें पता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट? बाकी ये जो दो थॉट्स है, वेस्ट और नेसेसरी, ये हम लेटर ऑन आने वाली क्लासेस में आराम से, क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर है, थॉट्स का हम एक अलग चैप्टर लेंगे, ठीक है, विद सम एक्टिविटीज जो हम क्लास में कुछ गेम्स के थ्रू फिर हम करेंगे। तो ये थॉट्स वाला चैप्टर में अभी नहीं ले रही। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके के थॉट्स आप लोग जरूर याद रखना। नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? बुरे थॉट्स, काम कर लेना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, इसने मुझे ऐसे बोला था ना, इसके साथ तो बहुत बुरा होगा। ये जो हम इस तरीके के सुनाई दे रहा थॉट्स है क्या? क्रिएट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स। और पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं? सबका बहुत अच्छा होगा, ये तो बहुत अच्छा है। मन से जब हम ऐसी वाइब्रेशंस, मन से जब हम ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो हमारे होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। बाकी ये जो नेसेसरी थॉट्स और बेस थॉट्स है, ये अभी नेगेटिव पॉजिटिव में भी बहुत कुछ है जो कि हम लेटर ऑन धीरे धीरे क्लासेस में करेंगे कब, ठीक है। फिर आप लोग अपना डिसाइड करना
कि क्या मेरे मन में किस तरीके के थॉट्स ज्यादा आते हैं। अभी भी आप लोग ये चीज सोचना बाद में क्लास के बाद, आज अपने एक एक थॉट को चेक करना कि अगर मम्मा कोई बात नहीं मानती, मेरे फ्रेंड ने किसी ने कुछ गलत बोल दिया, पापा ने कुछ कह दिया या कोई चीज के लिए मना कर दिया, तो मेरे मन में किस टाइप के थॉट्स ज्यादा आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। और लास्ट है एलिवेटेड थॉट्स, जो भी हम बाद में करेंगे। अब सोर्स ऑफ थॉट्स, थॉट्स कहाँ से कैसे आते हैं, सोर्स क्या है थॉट्स का? जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनको देखकर भी इन सारे जो सेंसरी हमारी सेंस ऑर्गन फील करते हैं, वो थॉट्स क्रिएट होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने कोई मूवी देखी, उस मूवी के थॉट्स चल रहे हैं हमारी आंखों, हमारे मन में। आज अगर हमने कोई मूवी देखी तो उस मूवी के थॉट्स क्या होंगे, हमारे मन में चल रहे हैं। या हम कुछ, या हमने कुछ स्मेल किया, हाय बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, तो